Hello, welcome students to the lecture number 13. I hope so. Every one of you is in flying colors and hope all of you have understood the lecture number 12. Right? We have done some questions on vertical motion in one dimension and I hope so आप सभी बच्चों को वो समझ में भी आए होंगे प्लस आप सभी बच्चे ना और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की होगी यू हैव डन मोर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस राइट सो स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग फर्दर I want to discuss some points with you. Look, we have started with kinematics and some of you have found it very easy or might be some of you have found it little bit tricky, right? But students, I will guarantee you the only and only one thing which can improve you is practice and doubt sessions. It does not mean that you have to record the lectures, more and more lectures. No. You have to practice the questions. You have to start with the questions first of basic level of kinematics. Basic level, so you have to start it. And gradually you have to increase your level. Don't go by questions. You take a very heavy question of a kinematics and start solving, and then you say कि सर हमारे से तो सर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे. आपने एक IIT JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन को उठा लिया और आप उसको सॉल्व करने लग गए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया. दैट इज अ रॉन्ग पाथ यू आर फॉलोइंग. कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा until or unless you are very super brilliant or you have done the concepts before, तब आप उन particular questions को solve कर पाओगे. Otherwise, you have to learn many more concepts right now. You have to learn many more concepts in kinematics. So, I will suggest all of you to solve the questions as much as you can of kinematics from different books. But एक book को तो thoroughly खत्म करो, एक basic book को तो thoroughly खत्म करो, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो एक पर्टिकुलर बुक में से थॉरोली खत्म करो. वंस यू हैव कंप्लीटेड विद दैट यू कैन गो विद अनदर बुक. यू कैन सॉल्व एज मेनी एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू सॉल्व बाय योर ओन, राइट? आई थिंक सो आई हैव प्रोवाइडेड यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल टू सॉल्व इट. नाउ इन टुडेज लेक्चर, ठीक है, I can also practice you more questions. Yes, we will practice more questions of kinematics, but that is at the last. ठीक है, एक बारी मैं थोड़े थोड़े concepts को cover कर लूं और लास्ट के अंदर मैं कुछ अच्छे questions को भी आपको practice करवाऊंगा. जैसे हमने relative motion को देखा था, we can solve a question without using relative motion, we can solve a question with using relative motion. Even कि acceleration वाले questions को भी हम relative के concept से use कर सकते हैं. We have solved some questions on that concept also. But आज का lecture में जो हम आज start करने वाले हैं, that is very important, a very important part, that is graphs in kinematics. अब हमारे पास how many type of graphs are over there in kinematics? That is, one we will study xt graph, that is displacement time graph. We have to remember, if I say x in y-axis, remember, I will take two axes, one is, this is x-axis and this is y-axis. अब आप बोलोगे सर आप इसको x-axis बोल रहे हो तो लिख तो आप x यहाँ पर रहे हो, तो भैया मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, axis ठीक है, ये x-axis है, ये y-axis है, ये x-axis है, ये y-axis है, ये x-axis है, ये y-axis है. But अभी मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर y-axis में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट को. और डिस्प्लेसमेंट को मैं किस सिंबल से डिनोट कर रहा हूं? x से डिनोट कर रहा हूं. रिमेंबर दैट. और x एक्सिस में मैं कौन से पर्टिकुलर क्वांटिटी को रख रहा हूं? दैट इज टाइम को रख रहा हूं. तो यहां पर मैं ये मेरा जो मैं पहले बोलूंगा दैट क्वांटिटी आई विल कीप ऑन y एक्सिस, और जो मैं बाद में बोलूंगा दैट क्वांटिटी आई विल कीप ऑन x एक्सिस. रिमेंबर दैट. तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है.
हम एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि एक्स टी ग्राफ कौन सा होता है, उसमें एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में क्या होता है, राइट। तो अब यहां पर दिस ग्राफ इज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है पार्टिकल का एक्स मतलब पोजीशन, पोजीशन कैसे वेरी कर रही है, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल देता हूं, कभी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल देता हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ, यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस में पार्टिकल की पोजीशन लाई करेगी, पोजीशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट साइड पर होगा तो नेगेटिव पोजीशन, अगर जीरो से ऊपर होगा तो दैट विल बी पॉजिटिव पोजीशन। आई थिंक सो एवरीबॉडी गॉट दैट पॉइंट। सेम पार्टिकल जो मोशन के अंदर है तो उसका वेलोसिटी भी वेरी करेगा टाइम के साथ, अगर वो एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेटेड नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है वो हम किसके अंदर देख पाएंगे, उस पार्टिकल के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, दैट इज वीटी ग्राफ के अंदर। तो यहां पर हमारे पास एक्स एक्स वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में टाइम है, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वी विल सी द पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यहां पर वहां पर पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और यहां पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, दैट वी विल सी। I will make different scenarios of the particle and draw their xt, vt and at graphs. Okay, remember that for now onwards I am using over here, यहां पर मैं टाइम को सेकंड्स के अंदर ले रहा हूं, तीनों एक्सिस के अंदर, और पोजीशन को मैं एसआई यूनिट के अंदर मीटर्स के अंदर ले रहा हूं, राइट। मीटर्स के अंदर मैं पोजीशन को मार्क आउट करूंगा, और वेलोसिटी को मैं मीटर पर सेकंड के अंदर मार्क आउट करूंगा, और एक्सेलरेशन को मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर मार्क आउट करूंगा, और टाइम को सेकंड्स के साथ मार्क आउट करूंगा, राइट। हाँ, आई कैन यूज आवर्स ओवर हियर, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर ओवर हियर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम इन आवर, दैट डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन। बट अभी के लिए मैं यहां पर एसआई यूनिट्स के अंदर सभी टर्म्स को ले रहा हूं, उनके ग्राफ्स को ड्रॉ कर रहा हूं, मैं वैल्यूज ही बोलूंगा जो एसआई यूनिट्स के अंदर होगी। नाउ बेटा एक बात और हमारे को ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम बच्चे हु प्रिपेयर फॉर द मेडिकल एग्जाम्स, आप मेडिकल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नॉन मेडिकल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो आप ग्राफ्स का मेजर पार्ट पढ़ोगे वो काइनेमेटिक्स के अंदर ही पढ़ोगे। और अगर आपको काइनेमेटिक्स के अंदर ग्राफ्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बीट इट एनी मेडिकल एग्जाम, यू कैन क्लियरली इट वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैक्सिमम बच्चों को जो डाउट आता है वो कहां पर आता है, ग्राफ्स में ही डाउट आता है। दे डोंट कम टू नो हाउ टू सी अ ग्राफ, हाउ टू कन्वर्ट अ ग्राफ, हाउ टू ड्राइव I think so, how to drive a particular information from a particular graph, वो ग्राफ में क्या कहना चाहता है, ग्राफ से आपको क्या बोल रहा है। तो इंफॉर्मेशन देने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, या तो मैं पैराग्राफ में लिख दूं या आपको ग्राफ बना दूं। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो, क्रिकेट के मैच के अंदर या तो वो क्या बोल रहे हैं पैराग्राफ के अंदर बना के दें कि फर्स्ट बॉल के अंदर उसने इतने रन मारे, फिर दूसरी में इतने हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। तो उस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए हमारा एक पैराग्राफ, एक पूरी बुक या एक कॉपी भर जाएगी। और उसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं एक ग्राफ के अंदर ब्यूटीफुली बना दूं, डिफरेंट डिफरेंट ओवर्स को लिख दूं, रन्स को लिख दूं, तो रन्स और ओवर्स का ग्राफ बन जाता है। और हमारे को कितना क्लियरली वो ग्राफ हम विजुअलाइज कर पाते हैं कि हर ओवर में कितने कितने किस रेट से वो ग्राफ रन्स बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना किसमें ज्यादा रन्स बढ़े और किसमें कम रन्स बढ़े और किसमें कांस्टेंट रहा। सिमिलरली पाई चार्ट, सर्कल्स, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोग्राम्स, ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, डिफरेंट डिफरेंट आप ग्राफ्स करते हैं। So similarly, this is one of the most important and interesting topic of this particular chapter, and many of students lag behind this knowledge. And if you get these graphs knowledge into your head, right, into your brain, right, so you will feel very self-confident. And when a student is having a knowledge of graphs, he can solve the problems of kinematics with much more ease. हमारे पास एक और टूल आ जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो एवरीवन, आई विल टेक द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स वेरी स्टेडीली। मैं स्टेप बाय स्टेप इन ग्राफ्स की वैल्यूज को इंक्रीज करूंगा,
ठीक है, हम क्वेश्चंस को वेरी सिंपली हम ग्राफ्स को स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। आई एम मेकिंग इट मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग सम टाइम टॉकिंग टू यू टू लेट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राफ्स। तो बेटा अब हमारे पास, ठीक है, ये जो से ग्राफ्स हैं, ठीक है, तो इनमें ये ग्राफ, हर एक ग्राफ क्या बताता है, उनका एरिया का बताता है, उनका स्लोप क्या बताता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम सबसे पहले भी हम देखते हैं कि हम ग्राफ्स को कैसे बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले बेटा एक और बात, ये जो ग्राफ्स वाली नॉलेज है, ठीक है, ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, समझने वाले बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी बेटा, राइट। तो एवरीबडी बी विद मी, अगर आपको कोई डाउट आता है डू द कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट, और कॉल मी ऑन व्हाट्सएप मी, आई एम ऑलवेज ओवर देयर फॉर यू स्टूडेंट्स, राइट, एंड यू विल डू वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स। मेडिकल एग्जाम्स के अंदर वेरी इजी क्वेश्चंस कम्स ऑन ग्राफ्स, नॉन मेडिकल के अंदर मेंस के अंदर वेरी इजी क्वेश्चन कम्स ऑन ग्राफ्स, और एडवांस के अंदर भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आपको ग्राफ्स का नॉलेज है, क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व इट, राइट। लेट्स कम टू द ग्राफ्स बेटा। तो अब बेटा सबसे पहले हम एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको बेटा सभी बच्चों को एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारा टाइम वेरी करेगा और वाई एक्सिस में यहाँ पर मेरी पोजीशन वेरी कर रही है, और यहाँ पर मेरा टाइम की वैल्यू 0 है और पोजीशन की वैल्यू भी क्या है, 0 है, राइट। तो अब बेटा सबसे पहले एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारा मोस्टली हम जो पर्टिकुलर मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट वी स्टार्ट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0। हम t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और एक बात हमेशा आप सभी बच्चों को याद रखनी है कि दैट इज टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, टाइम हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है, टाइम कभी भी वापस नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर मैं राइट लाइन से लिख रहा हूं कि टाइम कभी भी वापस नहीं आता, राइट। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान से कॉपी के ऊपर लिख लेंगे कि कभी भी हम अगर मूव करेंगे तो लेट्स से टाइम यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 सेकंड है, यहाँ पर 2 सेकंड है, यहाँ पर 3 सेकंड है, दैट वी विल ऑलवेज मूव इन टाइम एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इन टाइम एक्सिस we will always move from left to right direction because time always increases। तो कभी भी बेटा हम ग्राफ को देखेंगे, we will see the graph, हम ऐसे चलेंगे, 0 पर क्या पोजीशन थी, फिर 1 पर क्या पोजीशन थी, फिर 2 पर क्या पोजीशन थी, फिर 3 पर क्या पोजीशन थी। तो हमें ऐसे देखेंगे, कभी भी ग्राफ को इस तरह का रीड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो वेलोसिटी को भी अगर मैं देखूंगा तो पहले मैं देखूंगा 0 सेकंड्स पर उसकी कितनी वेलोसिटी थी, फिर 1 सेकंड पर कितनी थी, फिर 2 सेकंड पर कितनी थी, फिर 3 पर कितनी थी, फिर 4 पर कितनी थी, एंड सो ऑन। उसके ग्राफ को बनाऊंगा। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी देखूंगा तो इस तरफ टाइम को इंक्रीज करूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो दैट इज टाइम विल ऑलवेज विल इंक्रीज। देन दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस चीज को आप नोट बना के लिख सकते हो सभी बच्चे। यू कैन मेक इट अ नोट एंड नोट इट डाउन। आफ्टर दैट बेटा we will come to a simple questions। देखो अब मैं concepts को लूंगा, ठीक है, डिफरेंट एक बॉडी को लूंगा और उनके डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ्स को और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, राइट। तो यू हैव टू सी मैं उसको कैसे बना रहा हूं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको बनाते जाओगे और समझते जाओगे व्हाट इज द डिफरेंस कमिंग इन एक्सटी, बीटी एंड एटी ग्राफ। मैं तीनों को साइमल्टेनियसली ही बनाऊंगा, इजी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यू विल कम टू नो कि हाँ भी एक्सटी, बीटी ग्राफ और एटी ग्राफ कैसे वेरी कर रहे हैं, राइट। डन, ओके बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम एक लेट्स से मैं एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, दिस इज केस 1। तो सभी केसेस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले मैं केस 1 लेता हूं, और केस 1 के अंदर मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, लेट्स से ये नंबर स्केल है जिसके ऊपर मीटर्स के अंदर डिस्टेंस मार्क्ड है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एंड सिमिलरली पीछे की तरफ यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो लेट्स से दिस इज -1, दिस इज -2 एंड दिस इज -3, राइट। तो लेट्स से कार इज स्टैंडिंग,
ठीक है, अ पार्टिकल इज स्टैंडिंग ओवर हियर, स्टेशनरी है, मैं बोलता हूं इसका स्पीड भी इक्वल्स टू 0 है और एक्सेलरेशन भी इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, केस 1 के अंदर बॉडी कहां पर है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर, राइट। तो यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर भी पार्टिकल यहां पर खड़ा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी 0 है, तो अगले सेकंड ही आगे तो गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये आप सभी को बच्चों को बात समझने लग रही है कि हमारे सिलेबस के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, राइट। तो एक्सेलरेशन होने से गाड़ी की स्पीड चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन होने से, बट अगर गाड़ी की एक्सेलरेशन ही 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और इनिशियली अगर वेलोसिटी उसकी 0 है तो हमेशा गाड़ी कहां पर रहेगी, रेस्ट पर ही रहेगी। सभी को क्लियर हो गया, राइट। तो अब बेटा अगर मैं इसको टाइम t इक्वल्स टू 0 पर देखता हूं तो गाड़ी यहां पर खड़ी है, तो अगर टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पर देखूंगा तो सबसे पहले देखो t इक्वल्स टू 0 पर मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखूंगा, तो बेसिकली t इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास गाड़ी की पोजीशन कितनी है, x इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है, वो भी 3 मीटर्स है, 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी है, 3 मीटर्स है, 4 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज 3 मीटर्स। तो यानी कि जो मर्जी टाइम ले लूं, क्योंकि गाड़ी रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन हमेशा 3 रह रही है, राइट। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसका 1 2 3, तो t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी की पोजीशन क्या थी, 3, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या थी, 3, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन क्या थी, 3 सेकंड्स पर उसकी पोजीशन क्या थी, 3। तो अब बेटा जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, तो यहां पर गाड़ी का जो xt ग्राफ बनेगा वो कैसा xt ग्राफ बनेगा, 4 सेकंड्स पर भी उसकी पोजीशन क्या रह रही है, सेम रह रही है, तो आप देखोगे हर टाइम पर उसकी पोजीशन 3 रह रही है, तो उसका बेटा जैसा xt ग्राफ है, दिस विल बी द xt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द xt ग्राफ, दिस इज पैरेलल लाइन, क्योंकि हर टाइम पर उसकी उसकी बेटा पोजीशन है, ठीक है। देखो 1 सेकंड पर भी उसकी पोजीशन 3 आ रही है, 2 सेकंड पर भी उसकी पोजीशन 3 आ रही है, 3 सेकंड्स पर भी उसकी पोजीशन कितनी आ रही है, 3। तो दिस इज द xt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट एंड इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 सेकंड्स पर भी इसकी पोजीशन 3 है, 3 सेकंड्स पर भी 3 है, 4 सेकंड्स पर भी 3 है, यानी कि गाड़ी यहां पर 3 पर ही खड़ी है। एंड सिमिलरली बेटा अब अगर बेटा मैं इसका वेलोसिटी टाइम, आई थिंक सो होप सो आप सभी को इसका xt ग्राफ पता चल गया होगा, राइट। अब बेटा नेक्स्ट मैं इसका जो सा चीज ड्रॉ करने जा रहा हूं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ। तो अब मेरे को पता है कि t इक्वल्स टू 0 पर गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज 0 मीटर्स पर सेकंड। सिमिलरली t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकंड। t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकंड। t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी इसकी बढ़ ही रही है, वेलोसिटी हमेशा इसकी 0 ही रह रही है, हर टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 ही रह रही है। बात समझ रहे हो? तो नाउ आई एम कंसंट्रेटेड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द कार, यानी कि टाइम चेंज होने से गाड़ी की वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है। तो मेरे को पता चल रहा है कि हर एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 रह रही है। तो अब बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो t इक्वल्स टू 0, देखो x एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है, तो t इक्वल्स टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 वेलोसिटी है। 1 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। 2 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। 3 सेकंड्स पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अब बेटा यहां पर अगर मैं इसका vt ग्राफ बनाऊंगा, इट विल बी आल्सो अ स्ट्रेट लाइन which is overlapping the x axis, which is overlapping the x axis, right? And similarly बेटा अगर मैं अब इसका AT ग्राफ बनाऊंगा, तो AT ग्राफ भी मेरे को पता है कि हर टाइम पर t इक्वल्स टू 0 पर भी, t इक्वल्स टू 1 सेकंड्स पर भी एक्सेलरेशन 0 है, 1 सेकंड पर भी एक्सेलरेशन 0 है, 2 सेकंड्स पर भी एक्सेलरेशन 0 है। तो अब इसका बेटा कौन सा AT ग्राफ बनेगा, वो कितना बनेगा, दैट इज आल्सो अ 0। हर टाइम पर उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रह रही है, 0 ही रह रही है। तो ये भी एक ग्राफ बन जाएगा दैट व्हिच इज ओवरलैपिंग द x एक्सिस। तो अगर पार्टिकल स्टेशनरी है, वो जहां पर खड़ा है, ठीक है, तो उसका ये उसका xt ग्राफ बन गया, स्टेशनरी पार्टिकल व्हिच इज स्टैंडिंग एट 3, दिस इज vt ग्राफ एंड दिस इज at ग्राफ। तो यू कैन वेरी क्लियरली राइट डाउन द नोट कि इफ पार्टिकल इज स्टेशनरी, ठीक है, तो यू कैन मेक अ नोट दैट इज इफ पार्टिकल इज स्टेशनरी, make a note
if particle is stationary, is at rest or stationary, its xt graph is parallel to time axis and Vt and AT graph overlap x-axis या overlap time axis done, and they are parallel to time axis done. Clear? Okay. अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये गाड़ी 3 पर खड़ी है, लेट से गाड़ी खड़ी होती, लेट से यहां पर खड़ी होती, लेट से -2 पर खड़ी होती, इसी का केस ले लेते हैं। लेट से गाड़ी की स्पीड भी 0 है, एक दूसरी गाड़ी ली हमने, ये लेट से गाड़ी A थी, ये गाड़ी B है और इसकी एक्सेलरेशन भी 0 है। अब ये भी स्टेशनरी रहेगी। अब अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा, देखो ब्लू वाली गाड़ी का मैंने ब्लू से ग्राफ बनाया और रेड वाली गाड़ी का मैं ग्राफ रेड से बनाऊंगा। तो अब बेटा अगर मैं यहां पर दिस इज -1 दिस इज -2, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो यहां पर t इक्वल्स टू 0 पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज x इज इक्वल्स टू -2 मीटर्स, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी है, दैट इज -2 मीटर्स। तो हर टाइम पर इसकी पोजीशन -2 रह रही है, तो यहां पर रेड वाली गाड़ी का कैसे ग्राफ बन जाएगा, xt ग्राफ, दैट इज 1 सेकंड पर उसकी पोजीशन -2 आ रही है, लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस रेड कार। और इसकी टाइम के साथ वेलोसिटी कितनी रह रही है, हमेशा 0 रह रही है, तो इसका भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल ओवरलैप दिस एक्सिस। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। एंड सिमिलरली इफ द कार इज स्टैंडिंग एट 0 पोजीशन, तो इसका ये वाला पोजीशन भी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, vt भी ओवरलैप कर जाएगा और यहां पर भी इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो आई थिंक सो व्हेन कार इज एट रेस्ट, दिस इज केस 1 आई हैव डिस्कस्ड विद यू, दैट इज व्हेन कार इज एट रेस्ट, तो उसका xt ग्राफ, vt ग्राफ और et ग्राफ कैसे बनेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब वो पॉजिटिव पर खड़ी है, नेगेटिव पर खड़ी है और अगर लेट से 0 पोजीशन पर खड़ी होगी तो भी ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैं इसको 0 पोजीशन का भी ग्राफ बना देता हूं। अगर लेट से ग्रीन कलर की कार है, इसकी वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 है और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका xt ग्राफ कैसे बन जाएगा, इट विल ओवरलैप द टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो 0, दिस इज ओवरलैप द एक्सिस। तो मैंने 3 गाड़ियों का xt, vt और at ग्राफ बना दिया। जब वो रेस्ट पर है, ब्लू वाली गाड़ी 3 पोजीशन पर खड़ी है, तो वो 3 y एक्सिस पर 3 पर कट करेगी x ग्राफ को और पैरेलल बन जाएगी टाइम एक्सिस के। और अगर वो -2 पर खड़ी है तो -2 को कट करके पैरेलल बन जाएगी टाइम एक्सिस के। और अगर 0 पोजीशन पर खड़ी है तो xt ग्राफ के अंदर वो टाइम एक्सिस के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी लाइन। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो 0 ही रह रही है हर समय, तो उसका मतलब विद द टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ विल बी ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस इन vt ग्राफ एज वेल एज at ग्राफ। आई थिंक सो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इफ यू हैव बीन क्लियर टिल हियर, ठीक है, अभी हम मूव ऑन करेंगे टू द केस 2, ठीक है। अभी हम केस 2 के ऊपर जाएंगे और केस 2 के ऊपर देखेंगे कि हाँ भाई अब हम कुछ वेलोसिटी लेंगे गाड़ी की और एक्सेलरेशन को 0 रखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से ग्राफ्स को ड्रॉ कर लूं, राइट।